Hello friends, welcome to Pro Talent and this is our revision module on current affairs. I'm sure आप सब लोग हमारी करंट अफेयर मॉड्यूल के साथ वाकिफ होंगे और आपने बहुत मेहनत भी करी होगी हमारे साथ। और ये आखिरी मोमेंट पे जब आपकी एआईएलटी की एग्जाम आ रही है, स्लेट की एग्जाम दैट इज सिम्बासिस का एग्जाम आ रहा है और क्राइस्ट और क्लेट का एग्जाम आ रहा है, तब जाकर आपको ऐसे रिविजन मॉड्यूल की काफी जरूरत पड़ेगी। सो आई एम कवरिंग एवरीथिंग विच इज नीडेड फॉर योर क्लैट। ये protalentdigital.com की तरफ से आप सब लोगों को काफी अच्छा कंटेंट मिल रहा है। जो स्टूडेंट्स काफी दूर बैठे हैं और उन लोगों के पास ये सहूलियत नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लैट, उन लोगों के लिए Pro Talent is helping in a big way. So we want that people who are sitting in the remote places across India should get this support so that they have a level playing field and in the real sense जो इक्वालिटी की बात हो रही थी हमारे देश में हमारे फंडामेंटल राइट के मुताबिक वो उनको मिले। बट एनीवे हियर but then the important part is I'm going to cover this current affair in detail. So here I'm talking about international affairs और मैं यहाँ पे मैं कुछ important events आपके सामने cover करूंगा। This world affair will be done in possibly 2 to 3 modules. ठीक है, I will inform the you कि कितने modules होंगे। So this is module number 1. So in this module number 1 I'm going to cover some important events. फटाफट देखेंगे इन events का मतलब क्या है। अब इन events के अंदर मैंने थोड़ा सा डिटेल में डाला है so that if a question is coming to you in a twisted format you should be in a position to answer them, unlike the one liners। जब आप कुछ वीडियो देखते हो जहां पे वन लाइनर आता है, I think that's a bad idea to go through that. Okay, you have to go through little bit in more detail so that you don't have any major trouble in your final exam. Let's start with number 1, UNESCO meeting on intangible cultural heritage। ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आपको पता होगा यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज के लिए एक अवार्ड देता है। ठीक है, उसको एक तरीके से सिंबल देता है, थप्पा देता है कि भैया ये कल्चरल हेरिटेज है। और उसमें से इंटेंजिबल मतलब जो टेंजिबल नहीं है, ठीक है, जो एक तरीके से देखने के नजरिए से आप बता नहीं सकते हो, कि जिसको फील नहीं कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुंभ मेला। कुंभ मेला इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सो ये 13th एनुअल मीटिंग हुई थी यूनेस्को के साथ, आपको पता होना चाहिए। उनके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ऑजले। ठीक है, सो ये 13th मीटिंग में उन्होंने करीबन 6 एलिमेंट्स इंक्लूड करे गए थे which are basically called intangible cultural heritage. Okay, so newly inscribed elements are mentioned here. This is Chidaoba, which is a wrestling in Georgia, ठीक है, which combines wrestling, music, dance and special garments. ठीक है, this is an ancient martial art. Okay, so this is one of the very important part which which has been inscribed. ठीक है, hurling in Ireland, reggae music of Jamaica, ठीक है, रायोशिन रिचुअल, ठीक है, अल समीर इन जॉर्डन, ठीक है, ये सब चीजें इंक्लूड करी गई है। सो आई होप दिस इज नोन टू यू, आपको ये समझ में आ रहा है। ये टोटल ऐसी 6 आइटम लाइक ट्रेडिशनल स्प्रिंग फेस्टिवल राइट्स ऑफ कजाकिस्तान हॉर्स ब्रीडर, दे आर दी टोटल वी कैन से 6 आइटम्स बीइंग पार्ट ऑफ इट। ओके, ये जो 14th एनुअल मीटिंग होगी दिस विल टेक प्लेस फ्रॉम 9 to 14 December 2019 बगोटा में होने वाली है। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट 33rd ASEAN Summit. So you should know the full form of ASEAN, that is Association of Southeast Asian Countries. This is ASEAN, 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये टोटल मिला के 10 कंट्रीज है। कौन से 10 कंट्रीज है? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। Which means, is India a member of this? No. Is China a member of this? No. Okay, so this is 33rd ASEAN Summit which was organized from November 11th to 15th 2018 and the theme was resilient and innovative. This is what ASEAN का meeting हुआ था। Okay, so this is an opening speech. Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong said that ASEAN members should fight against terrorism. This is what he mentioned. Coming to next event, which is called World's Longest Sea Bridge. I'm sure you know this world's longest sea bridge
is linking Hong Kong, Macau to mainland of China. So this is Xi Jinping ने अक्टूबर 23 2018 में उसको ओपन किया था. दिस इज 55 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है ना. दिस इज वंडरफुल. मतलब आप समझ सकते हैं कि सी ब्रिज में आपको ऊपर चढ़ाई उतार भी है. दिस इज वंडरफुल थिंग. 55 किलोमीटर लॉन्ग है ये and this is connecting Hong Kong to China. Okay, construction of bridge started in December 2009 and it was completed in 2016. Okay, this is wonderful thing. Another event is called world's largest amphibious aircraft. China का amphibious aircraft AG600. This is Beijing के मुताबिक this is world's largest. It carried out its first takeoff and landing on waters on October 20, 2018. It is amphibious. That means जमीन पे भी चलेगा और पानी पे भी. So एक तरीके से टेक ऑफ और लैंड करने के लिए इसको जमीन भी चलेगी और पानी भी चलेगा. ठीक है. It stayed airborne for 15 minutes. It was piloted by 4 crew members. Code name was Kun Long. Okay. The AG600 made its maiden flight from Zhuhai in December 2017. So world's largest amphibious aircraft that is called AG600. उसका कोड नेम है Kun Long. I hope you are with me and you are understanding what I'm saying. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर. Japanese passport is world's most powerful passport. ये ऐसा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं. और ये कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश्ड बाय हेनली पासपोर्ट इंडेक्स. ओके, सो दिस इज जापानीज सिटीजंस एंजॉय वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस टू मोर देन 190 डेस्टिनेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड. नंबर 2 पे है सिंगापुर. ओके, सिंगापुर पहले नंबर 1 पे हुआ था और बीच में ये रिड्यूस होकर नाउ इट हैज रीच टू नंबर 2. इंडिया इज एट 81th पोजीशन. ठीक है. इंडिया का वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल इज एट 60 डेस्टिनेशन. ओके, सो ये है. लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था 86 एंड वी हैव इंप्रूव्ड एंड वी हैव रीच्ड टू 81. नेक्स्ट इज कॉल्ड यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा have agreed to replace NAFTA. Now what is NAFTA? NAFTA is North American Free Trade Agreement. Okay, so this is what they have replaced and the name of the new agreement is United States Mexico Canada Agreement, which is called USMCA Agreement, जिसने NAFTA को replace किया है. ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये पूरा का पूरा नाफ्टा इज 25 ईयर पुरानी जो चीज है वो पूरी रिप्लेस हो गई एंड यू हैव अ न्यू नेम कॉल्ड यूएसएमसीए व्हिच इज यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट. ओके, नेक्स्ट इज कॉल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन. जर्मनी ने सितंबर 17 2018 में इस वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को सिग्नल करी थी एंड दैट टर्न आउट टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो हाइड्रोजन ट्रेन्स आर इक्विप्ड विथ फ्यूल सेल्स और ये कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और यहां से कम रादर जीरो एमिशन है. सो दिस इज मेड बाय एल्स्टॉम. ओके, एल्स्टॉम ने ये बनाने की कोशिश करी थी एंड इट इज गिविंग इट टू द जर्मनी वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन. नेक्स्ट इज कॉल्ड वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2018. इट इज हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा एयरपोर्ट. एटलांटा का हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा एयरपोर्ट is the world's busiest airport और इंडिया का it is at 16th busiest airport में नाम आता है. This is Indira Gandhi International Airport that is in New Delhi. Coming to next place called world's most livable city is Vienna. Vienna is the capital of Austria and that is world's most livable city. Okay, so South Asian countries including India have fared poorly. हमारे यहाँ पे ये अच्छे नहीं है. जैसे इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली की बात करें विच इज एट 112th प्लेस, मुंबई इज 117th आउट ऑफ 140. 140 सिटीज जो लिवेबल सिटी है एटलीस्ट उसमें तो कुछ नाम है इंडिया के, तो वो खुशी मनानी चाहिए. बट एनीवे नंबर 1 इज वियना. नंबर 1 इज वियना, याद रखिएगा. दिस इज ऑस्ट्रिया का कैपिटल है. और 5 लिस्ट लिवेबल सिटीज आर सेनेगल्स डाकार 131 रैंक है उसका, अल्जीरिया का 131 दैट इज अल्जीर्स, कैमरून का दुवाला 133rd, लीबिया का ट्राइपोली जो उसका कैपिटल है, जिम्बाब्वे हरारे 135. सो दे आर द बैड प्लेसेस, not livable places in the
world. Next is called Ethiopia, Eritrea reopen their border after 20 years. So I'm sure you know Ethiopia and Eritrea. They are on the Horn of Africa. Horn of Africa में आते हैं ये. They reopened crossing points on their shared border for the first time after 20 years. Okay, so this is basically reconciliation between Addis Ababa, which is basically a capital of Ethiopia. For so many years, this border between Ethiopia and Eritrea was closed. There were wars, and more than 80,000 people have died on this particular place. So that's huge. और उसको उन्होंने बंद करके रखा था ताकि वॉर ना हो सके, और अब उसको 20 सालों के बाद उन्होंने उसको खोला है. 20 new properties inscribed in the World Heritage List. 20 new properties. Okay, so this is the 42nd session of World Heritage Committee of UNESCO held on June to July at Manama, Bahrain. Okay, so there are 20 items. उस 20 आइटम में से 13 कल्चरल है, 3 नेचुरल है, 3 मिक्स्ड है और 1 सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन वाला है. और इसमें जो ऐड किया गया इंडिया की तरफ से, दैट इज विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको ऑफ मुंबई. मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड विक्टोरियन गोथिक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर. तो उसको इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा है. सो इंडिया का टोटल 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. इंडिया का टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 6th नंबर है. नंबर 1 पे है इटली, नंबर 2 पे है चाइना, देन स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी. इंडिया कम्स एट 6th पोजीशन. सो दैट इज वंडरफुल थिंग. और इंडिया चाहता है दैट वी शुड रीच टू दी फर्स्ट पोजीशन, पर इटली हमसे काफी आगे है. बहुत सारे हेरिटेज साइट है उसके पास और वहां से वो काफी आगे है. And then we go to the next point, which is called 44th G7 Summit. 44th G7 Summit took place at Quebec province in Canada, while 45th G7 will be held at France. Now, ये G7 Summit क्या है? G7 Summit ये थी कि टोटल G8 कंट्रीज थे और रशिया was suspended from this G8 group because it forced on यूक्रेन. यूक्रेन के ऊपर अटैक करके उसने क्रीमिया को अपने हाथ में लेके रखा हुआ था. So this is a 44th G7 summit which took place at Canada, and now G7 45th will be taking place at France. So the question may come that ये G7 कंट्रीज में से नीचे में से कौन सी कंट्री नहीं है. This is how the question may come, and you should be mentally prepared that Russia has been removed out of G7. Non-permanent member of UNSC member, United Nations Security Council के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं. और ये नॉन परमानेंट मेंबर के एक तरीके से इलेक्शन होता है. सो 2018 में साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, बेल्जियम, दे हैव बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर. ओके, सो ओवरऑल 5 जो परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए. ये 5 परमानेंट मेंबर है और बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है उनका टेन्योर 2-2 साल का रहता है. और ये अभी रिसेंट इलेक्शन में वो यूएनएससी के मेंबर बने थे. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? दिस इज द मोस्ट पावरफुल यूनाइटेड नेशन का फंक्शन. प्राइमरली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट अगेंस्ट पीस. अगर उनको लगता है कहीं पे पीस, शांति का भंग हो रहा है, कहीं पे शांति के खिलाफ परेशानी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत पड़ती है. द नेक्स्ट इज येलो वेस्ट मूवमेंट. येलो वेस्ट मूवमेंट इज फ्रॉम फ्रांस. इट इज अ मूवमेंट फॉर इकोनॉमिक जस्टिस that began in France in November 2018. More than 1 million people signed for this mass demonstration, and it began on 17th of November. It was motivated by rising fuel prices, high cost of living, okay, and then they are thinking that there is a disproportionate burden of government's tax reform, okay, and thereby there are a lot of people like working class, rural people, and non-urban people, they are getting lot of trouble. Okay, so उसको इन्होंने reduce करने के लिए बोला था और साथ में ये भी बोला था जो इमैनुअल मैक्रोन भाई साहब है जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है उनको भी निकालने की बात कर रहे थे. So this is a yellow vest movement that's in France. Then we have Venezuela.
which is in the news. Maduro, that is Nicolas Maduro, who is an elected president, and this is, you can say, Mr. Guaido, he is saying that he is a president. So there is a fight happening between these two people saying that who is the president. Okay. Now this gentleman, Mr. Guaido, has been getting support by various countries, including America, while Nicolas Maduro is getting support from Russia. Okay, so here Venezuela is known for world's largest petroleum reserve. Okay, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व अगर किसी के पास हो, so that is Venezuela. But Venezuela is in a big crisis. फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वहां पे हालत बिल्कुल खराब है, और ये फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वेनेजुएला के अंदर ये लड़ाइयां क्रिएट हो रही है. निकोलस माडुरो इज गेटिंग अ सपोर्ट ऑफ वेनेजुएलन आर्मी. लेट्स वेट एंड वॉच what will happen to this. Next is Saudi Arabia is going to become the third partner in CPEC. Now what is CPEC? CPEC is a China-Pakistan economic corridor from Gwadar port to Kashgar city in China. There is a special economic route which is being developed and Saudi Arabia is becoming part of it. Saudi Arabia क्यों? ये इस रूट में तो Saudi Arabia आता नहीं है. So Saudi Arabia said that we will provide a support on the sea route and thereby we will become the part of CPEC. So this is what the meaning of Saudi Arabia becoming third partner of CPEC, China, Pakistan and now Saudi Arabia. Okay, next is called, there are various rebellion group जो रेगुलरली न्यूज में आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में एक प्रोविंस है, ये रहा आपका सामने जिनजियांग प्रोविंस. सीरिया में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड इडलिब प्रोविंस एंड देन म्यांमार में देयर इज अ रेखाइन. नाउ दिस आर द एरियाज. वैसे देखा जाए तो ये रेबेलियन है, और रेबेलियन मतलब जो सरकार है वहां की उनके खिलाफ ये लोग जा रहे हैं और सरकार इनको दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है. जिनजियांग प्रोविंस इज अ एरिया ऑफ मुस्लिम्स. चाइना उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, वाइल सीरिया इडलिब प्रोविंस को बर्बाद करने की कोशिश पे एक तरीके से सिविल वॉर है. और रेखाइन इज एन एरिया विच इज ऑफ अरब पीपल, और वहां रोहिंग्या कम्युनिटी, रोहिंग्या मुस्लिम्स है और म्यांमार के लोगों को वो पसंद नहीं है, तो यहाँ पे लड़ाइयां हो रही है. सो रेखाइन प्रोविंस Rohingya people, Idlib province is in Syria and Xinjiang province is for Uyghur community. Okay, so this is called Uyghur community. ठीक है, उनकी community है चाइना में. So बिल्कुल याद रखिएगा ये. Next is called disputed islands. Which are the disputed island in the you can say nearby India? One is called Senakaku Island. It is between China and Japan. ठीक है, जापान के पास ये एक आइलैंड है. चाइना बोलता है ये हमारा है, जापान बोलता है that we have already purchased it. Now this Senakaku island was of Taiwan, but China says Taiwan is Mera area. Kuril Island is a dispute between Japan and Russia. Spratly and Paracel Island is a disputed island between China and neighboring country. ठीक है, ये पूरा बड़ा परेशानी वाला एरिया है. ये आपका सेनाकाकू आइलैंड है. ठीक है, चागोस आइलैंड इज अ डिस्प्यूट बिटवीन यूके एंड मॉरिशस. ठीक है, इंडिया बोलता है ये चागोस आइलैंड है, ये मॉरिशस है. ठीक है, यहाँ पे ये कॉलोनी थी ब्रिटिशरों की और बरसों से ब्रिटिशर वहां पे है. इंडिया ने मॉरिशस को सपोर्ट करके बोला है दैट दिस चागोस आइलैंड शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ यूके, और उनका डीकोलोनाइजेशन पूरा कंप्लीट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो लोग यहां से निकलेंगे नहीं. सो दिस इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के मुताबिक आपको क्या क्या पता होना चाहिए. सो दिस इज वन इज बांग्लादेश में चितगोंग नाम का जो पोर्ट है, दिस इज व्हाट चाइना कंट्रोल्स. श्रीलंका के अंदर हेम्बेनटोटा पोर्ट है, दिस इज व्हाट चाइना कंट्रोल्स. मालदीव्स में दे हैव अ अगेन से मराओ, एंड अभी रिसेंटली उन्होंने जिबौती नाम के कंट्री में अपना नेवल बेस बना के रखा हुआ है. सो दिस इज वेयर दे आर डेवलपिंग, और ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट तो उन्होंने बना के दिया है. ओके, सो चितगोंग इन बांग्लादेश, हेम्बेनटोटा श्रीलंका, मालदीव्स, माराओ, जिबौती एंड पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट. दिस इज पॉपुलरली नोन एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बाय चाइना, और ये इंडिया को पूरा कंट्रोल करने की बात है. और इससे बचने के लिए इंडिया हैज डेवलप्ड यहाँ पे ग्वादर पोर्ट. ओके, कौन सा पोर्ट बनाने की बात करी है इंडिया ने? ग्वादर पोर्ट. सो ये ध्यान रखिएगा. ओके, चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग माय फर्स्ट मॉड्यूल ऑन दिस करंट अफेयर पार्ट. ओके, दिस इज वर्ल्ड अफेयर, इंटरनेशनल इश्यूज. डू नॉट मिस आउट टू रिपीट दिस, क्योंकि आप अगर रिपीट करोगे एग्जाम में सीधे 1 मार्क का क्वेश्चन इनमें से पक्का जरूर आएगा.
ओके, चलिए ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।